Hello, my name is Rajiv Malhotra. I live in the United States and visit India 3-4 times a year. I just arrived last night in Delhi, and a friend of mine who is very well connected with different politics in India, especially with the Aam Aadmi Party, told me that there are some important individuals who've had some important relationships with that party who want to come out and make some statements. And it would be a good idea to have a conversation. So I'm very glad that I have important persons who know these things. And what I would like to request is, starting with you, Ashwin, if you can each give a minute or so of your name, background, your relationship with the Aam Aadmi Party, whether you're an insider or an outsider journalist, in any case, then we can start the discussion. Please. मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, उसके बाद एक लॉयर भी हूँ। 2006 में हमने एक एनजीओ बनाया था, पीसीआर, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, जो आरटीआई के उसके ऊपर हम लोग काम करते थे। तब से मैं जुड़ा था उसमें। मनीष, मैं, एक अभिनंदन है, हम चारों लोग मिलकर काम शुरू किया था, और भी कुछ लड़के हमारे साथ। तब से काम शुरू किया। फिर परिवर्तन कबीर भी उसके पार गए। पीसीआर रजिस्टर्ड था, बाकी नाम रजिस्टर्ड थे। आपका परिवर्तन नाम था, कभी भी रजिस्टर्ड था। उसके बाद फिर आईएसी मूवमेंट शुरू हुआ। फिर आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी का मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य था, नेशनल काउंसिल मेंबर एंड फाउंडर मेंबर था। फाउंडर मेंबर अभी भी हूँ, नेशनल काउंसिल मेंबर अभी भी। You have left the party or no? Yeah. You resigned from the party. I am Sudesh Verma. I am a journalist. I was news editor with Newsx television channel just a few days back. Before that, I worked with the British High Commission in Delhi for 3 years as the senior political analyst. I worked with the Statesman and various other newspapers in this country. You see, we wanted change, and we started a movement called Youth for Democracy. It derived inspiration from Jayaprakash Narayan, who used to say, democracy can change only with youth. And then this Anna movement happened. We became a part of it. And gradually, we came closer to Anna movement. We were the ones who persuaded Kejriwal to form this party. And when this party was founded, we became its founding member. But as we came closer and realized that things were not happening as we wanted, so I took the most honorable way that was available to me. I resigned from the party. When was that? It was a year back, and I told Kejriwal that I am resigning because you don't have any work for me. I've been coming to your office every day. There's nothing for me. So whenever you need me, because I am for this movement, I'll come back to you. And when I went back as a journalist, I ensured that we gave this movement a lot of coverage because we were sincerely committed to this cause. Even when I was outside, I thought that this is one movement that needs to be supported by everyone. I used to have a fight in the office for that. That why did I say if Anna is not news, if Kejriwal is not news, what is news then? And I'm very sad today that this movement that could have been a brilliant movement for change has come to this position. Good introduction. Sandeep? मैं संदीप देव हूँ और दिल्ली में पिछले 12 साल से हिंदी जर्नलिज्म में हूँ। दैनिक जागरण, नई दुनिया, नेशनल दुनिया, काफ़ी सारे अखबारों में काम किया है। सीनियर पोस्ट पे रहा हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं एक किताब लिख रहा था जो पूरा हो चुका है। 13 फरवरी को वो आया है, साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी। तो इस किताब के सिलसिले में जो मुझे रिसर्च करने का मौका मिला, गुजरात से लेके दिल्ली तक काफ़ी सारे, उस रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि देश में एक बहुत बड़ी मतलब एक जो हमारे भ्रष्टाचार हो या पीड़ितों को लेके जो आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन जो चल रहे हैं, वो असल किसी न किसी कॉज से चल रहे हैं। वो दिखता हमें है कि वो समाज सुधार के लिए चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा विदेशी फंडिंग, बहुत सारा विदेशी मनी जो है उसमें लग रहे हैं। मैं और डीप होता चला गया और मुझे लगा कि कुछ एनजीओ जो बहुत खास है, मतलब बड़े एनजीओ हैं, और कुछ फंडिंग एजेंसी जो बड़े हैं, को रिलेट हर जगह हो रहे हैं। वो गुजरात हो, आंध्रा हो, दिल्ली हो, वो तमिलनाडु हो, रेगुलर को रिलेट हो रहे हैं। और हम जब देखना हमने शुरू किया कि आखिर ये किस चीज़ के लिए फंडिंग करते हैं, तो ये समझ में आया मुझे कि एक तो किसी भी स्थिर सरकार को गिराना है, उसके लिए बड़े पैमाने पर भारत में फंडिंग हो रही है। फिर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग कई बार ऑर्थोडॉक्स ढंग से सोच लेते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, ये कुछ आरएसएस का होगा या समथिंग
इस तरह से सोचते हैं, पर वो बहुत बड़े पैमाने पे भारत में नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक, और सरकार की रिपोर्ट कहती है कि उन स्टेट में जहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी फंडिंग हो रही है, चर्च जो है धर्म परिवर्तन में बहुत आती है। तो इस तरह की रिसर्च करते करते जब मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें तो बहुत आँख खोलने वाली है भारत में, सरकार से लेकर, मैं सरकार कह रहा हूँ क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया जी के नेतृत्व में बनाया गया था, तो सरकार को पूरी पॉलिसी मेकिंग देता था। जितनी पॉलिसी आप देखेंगे, मनरेगा बहुत अच्छा माना जाता है, पर मनरेगा को किस तरह से एग्रीकल्चर खत्म करने के लिए, भारत के एग्रीकल्चर को बिल्कुल खत्म करने के लिए मनरेगा के पॉलिसी को अरुणा राय और इन लोगों ने खड़ा किया था। तो आपने मेरी जो बुक ब्रेकिंग इंडिया और बाकी जो राइटिंग्स है उसके बारे में आर यू फेमिलियर? बिकॉज़ मैं बिल्कुल जानता हूँ, काफी जब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके थ्रू में आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और आपके कई ब्लॉग्स मैंने जब पढ़े हैं तो मुझे लगा कि आपने बहुत रिसर्च किया है और भारत को किस तरह से तोड़ रहे हैं लोग बाहर से। हमें नहीं दिखता है लेकिन भारत को बिल्कुल तोड़ा जा रहा है अंदर से जो है। इसमें फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिससे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर लोग इसको समझते हैं, मुझे लगता है तो उनको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि देश टूट रहा है। उन्हें समझना होगा कि देश टूट रहा है। ये जितने आंदोलन हैं ऊपर से बहुत ग्लैमरस, हाथी के दांत वाली बात है। तो इसको आप कुछ एग्जाम्पल देंगे ना? अभी डिस्कस होगा तो एग्जाम्पल्स देंगे। आपकी रिसर्च में क्या क्या आपने? मेरी रिसर्च में तो मैं कह रहा हूँ सरकार से लेके भारत के सुप्रीम कोर्ट तक, जो मैं ये बात कहूंगा मेरी किताब में वो है। सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत माना जाता है ऐसी संस्था जिसपे हालांकि जल्दी नहीं सवाल उठा था, पर मैं उसके भी रेफरेंस मैंने दिए हैं, फिर दस्तावेज दिए हैं। गुजरात हाई कोर्ट के जो पूर्व में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरा वो एक लेटर पूरा सबमिट किया है। सुप्रीम कोर्ट अभी रिटायर हो चुके हैं, वो अप्रैल में जस्टिस आफ्ताब आलम, उनकी पूरी फैमिली को फॉरेन फंडिंग होती है। और खुद जस्टिस आलम ने ब्रिटेन में एक पेपर पढ़ा था और भारत के सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कम्युनल बताया, उस पूरे पेपर को फंड किया किसी विदेशी एजेंसी ने। तो उसके बारे में ये बता ठीक है। और राकेश? Well, my name is Rakesh Agarwal and I run a social organization called Nyay Bhumi. We work on the transport policy, promotion of right to information, and to a certain degree judicial reforms. I have been associated, I have known Arvind Kejriwal since 2000. Our journey into social work started almost together under the umbrella of Parivartan. When the party was founded, and very soon we found that the mainstream media was not touching the party with a barge pole. So we stepped in and we said, let us use auto rickshaws for promotion of the party. And we made certain strategic moves in order to bring the auto rickshaw drivers community closer to the party, in order to instill in them a sense of belongingness, that there is a political party which has first time spoken about the issues and concerns of auto rickshaw drivers. And today Arvind and almost everybody in the political arena will admit that without auto rickshaw drivers promotion, this party would have... वो तो अच्छा काम हुआ। ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, अब देखिए उनसे भी बहुत तरह के वायदे किए, लेकिन 49 दिन की सरकार में उनका कोई वायदा पूरा नहीं किया गया। तो ऑटो वाले भी नाराज़ हैं। जो उन्होंने दिल्ली के चुनाव में बहुत जमकर के साथ दिया, लोकसभा चुनाव में किसी किसी गाड़ी के ऊपर उनका पोस्टर नजर आता था, और वही हाल करीब सारी जनता का है। तो इश्यूज़ को उठाना बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी में, और वहाँ से हमारे बीच में संबंधों में खटास आ गई, दूरियां बन गई। और मैं तकनीकी रूप से आज पार्टी में हूँ, लेकिन वैसे पार्टी से मेरा कोई संबंध ना के बराबर है। सुरजीत? I'm Surjit Dasgupta and I switched to activism from journalism. In 2011, in April, this show, I would call it a show, a spectacle, not quite a movement, of Jan Lokpal Andolan. So what did we hear on the first day of Jan Lokpal movement, on 5th April? The organizers of the event said, हमें joint drafting committee में बिठा दो. They did not demand a Lokpal. You know, if you are a revolutionary, you will not begin with a compromised formula. जब ये बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी में हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक चीज के कारण एक ऐसा कुछ हो रहा था जिसने मुझे पकड़ रखा था कि नहीं मत जाओ वहां पे, वहां कुछ गड़बड़ है।
वो ये था कि लगातार जो प्रशांत भूषण के बयान आते थे कश्मीर पे, उसमें मुझे लगता था कि इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए जिसमें एक इतना प्रोमिनेंट मेंबर इस तरह के बयान देता हो, वहां में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, हमें तब तक खबर लग चुकी थी कि योगेंद्र यादव आ चुके हैं और उनकी भी लेफ्टिस्ट विचारधारा है, इससे हम अवगत थे। पूरे 2013 में जिस साल दिल्ली में चुनाव का सीजन था, अरविंद लगातार ये बयान देते रहे कि मैं न तो लेफ्टिस्ट हूं न तो राइटिस्ट हूं, मुझे जिस समस्या का जहां से समाधान मिल जाएगा मैं वहां से ले लूंगा। अब मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं उस पर अविश्वास करता, लेकिन 20 नवंबर 2013 को उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला जिसमें कि राइटिस्ट कोई भी बात नहीं थी, सारी की सारी पॉपुलिस्ट और लेफ्टिस्ट बातें थी। तो फिर मैंने उनसे कहा, आपने पूरे साल भर जनता को धोखा दिया है। तो 20 को मैनिफेस्टो निकला और 21 को मैंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं इस पार्टी को इतना अंदर से जानता हूँ, तो बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है, उसके बारे में मैं लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। Thank you, thank you. So, Sudesh, I'll request that I want you to tell me. मेरे को अभी तक समझ नहीं आई. What is wrong with AAP? If you can put your finger on AAP, what is your assessment with nothing personal? Okay. You see, so far as personal is concerned, it's very painful for me to talk on camera against Arvind Kejriwal. Because still I share a very good relation with him. And I feel pain to speak against him. But it is not against him again. There is nothing personal. Actually, he offered me a ticket to contest in Delhi. I refused, saying that this is not for what I came. So I have nothing, no axe to grind against Kejriwal. And if he had followed the path for which most of us came, I'll just talk about one incident. And I have a proof. Surjit is a proof. So I don't have a tape record of that. But Surjit will bail me out if I'm wrong. Please tell me if I'm wrong. We were sitting in the car. We had gone to campaign with Arvind in one of the slum areas. When we were coming together, Surjit was there, Arvind was there, and I was there. Only three of us were there in the car. I was driving the car. He was driving the car. I was sitting on the back seat. And this is what he told me. He tells me, Sudesh ji, अगर अरविंद केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित हो जाए, तब मामला बन जाए, तब हम लोग जीत जाएंगे। We said कि why? आपको तो आम आदमी पार्टी की बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अपनी यू शुड टॉक ऑफ इंस्टीट्यूशन, वाई इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। मतलब नहीं, ऐसे ही होता है, इंडिया ऐसे ही समझता है लोगों को समझाने के लिए। एंड दिस इंटायर आम आदमी पार्टी became Arvind Kejriwal. Arvind Admi Party. Arvind Admi Party. Basic bottom line, just in one sentence, is that he failed to live up to his promise of being a democrat in democratic process inside. पर्सनालिटी कल्ट बनाने में खुद एक एक जो ग्राफिक एलिमेंट होता है, बैनर है, झंडे के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी तस्वीर लगाई थी। ये बात मैंने उनसे नवंबर में उठाई। मैंने कहा हम तो व्यक्ति पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी कल्ट आप बना रहे हो, दूसरी तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। But you see, ideologically where I found him to be incorrect. He goes there, talks to Tawqir Raza Khan, who is known for his communal image, who is known for, Taslima Nasreen's head he is asking because he has written something. And how can you go to such element? I would like to intervene here. This is the most dangerous aspect of Arvind Kejriwal, that this man is actually not driven by conviction. He does not have an ideology. As Sudesh was pointing out, that the incident he is talking about is of December 2012. We were all sitting inside a room and this activist from Okhla Gaon, Okhla village, which is Muslim dominated, said that we need to announce a special package for Muslims, and he was very much against that. Now what happened in due course of the next 3 months? Sudesh had gone back to journalism and he was fighting the same battle being as a journalist, but I was very much active in the party, and since I was given the charge of Northeastern Lok Sabha constituency, under which there are 10 Vidhan Sabha constituencies, so because of my work in that area, I couldn't be with Arvind all that time. The problem with this man is, if you draw close to him for 5 days, for those 5 days he starts talking like you. For the next 5 days, he comes close to him and he starts talking like him. He does not have any conviction of his own. So in those days when that Batla House encounter comment had come from him, that was the period when Okhla Gaon activists were close to him.
I was saying Yeah. that you see, ideologically I found you can say that you want to be like Gandhi because he quotes Gandhi all the time. But when you want to be Gandhi, you have to be a man of conviction. What you want for the country. I found this conviction lacking. Let me ask you now, you are not inside the party. You have done real research as an outsider, like I have been doing, on how some of these foreign funding are compromising and what is the relationship of जो आम आदमी पार्टी की relationship है इन foreign funding के साथ वो क्या है और सुप्रीम कोर्ट के कई लोग हैं कई मतलब आप उसके बारे में हमको बताएं। पहली बार मैं अखबार में था तब ये आंदोलन कवर कर रहा था, तो मैं नई दुनिया अखबार में था और इस आंदोलन को मैंने बहुत क्लोजली कवर किया था। इवन कि जब अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल हुआ था तो मैं पूरी रात वहाँ रहा था, सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो हम इसको कवर कर रहे थे, रेगुलर कवर कर रहे थे। और बाबा रामदेव का आंदोलन हो, इनका आंदोलन हो, पर जब बहुत सारी चीज़ें जब देखने में आई, पार्टी हुआ, बाकी मेरा रिसर्च किसी और चीज़ को लेके जब हो रहा था, तो जब उस रिसर्च में एक चीज़ बात और आई कि अरविंद को फोर्ड ने आखिर किस कैटेगरी में इसको ये रेमन मैग्सेसे दे दिया, जिस कैटेगरीज को ये फुलफिल ही नहीं करता है, उस कैटेगरीज में आपने रेमन मैग्सेसे कैसे दे दिया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इसको मिला है अरविंद केजरीवाल को, वो इसको मिला है उभरते हुए नेतृत्व के लिए मिला है। और उस समय आंदोलन का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। जो एक दिल्ली का एक आम RWA कवर करता है, साधारण RWA जो हमारे बिजली के प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता है, वो पर्चा लेके जाते हैं। और मैं भी कई लोगों के एज ए जर्नलिस्ट हूँ, कई लोगों के मैंने बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं, पर उससे बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए 2500 अर्जियों को लेके उसने बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। उस आधार पे आप देखेंगे कि इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो इसको दे दिया गया। तो मेरा डाउट वहाँ से हुआ। मैं उस समय तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बहुत ही मतलब आप समझिए बहुत नोबेल और बहुत प्रेस्टिजियस पुरस्कार समझता था, पर मेरा डाउट वहाँ से होने लगा। और फिर मैंने रिसर्च जब चल रहा था, इनके उसमें एक बात और आया था कि जब इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी कि 2 चीज़ें थी। ये कह रहे थे कि जन लोकपाल में NGOs नहीं आना चाहिए, तो मेरा डाउट वहाँ से और उठना शुरू हुआ कि NGOs क्यों नहीं आना चाहिए। फिर दूसरा था कि ये जो लोकपाल कमेटी बनी उसमें सारे रेमन मैग्सेसे ही होने चाहिए, उनकी कमेटी में सुरेश जानते हैं। तो मैंने कहा क्यों रेमन मैग्सेसे क्यों होनी चाहिए, बाकी भारत में क्या और कोई बुद्धिजीवी नहीं है, क्यों होनी चाहिए। तो जब मैं इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि रेमन मैग्सेसे जस्ट अरविंद केजरीवाल, फिलीपींस के अरविंद केजरीवाल थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनका। 1955 की बात है सर। और उनको अमेरिका ने कैसे फंडिंग किया, किस तरह से उसको CIA ने खड़ा किया था फिलीपींस में। असल में जब द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद की जो सिनारियो थी और वामपंथ आंदोलन रशिया उसको लीड कर रहा था, पूरे जो दक्षिण एशिया में जब फैलने लगा था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किस तरह से CIA को खड़ा हुआ था CIA। और उस किस तरह से आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं फोर्ड क्या है, कार निर्माता कंपनी है, सबसे बड़ा हथियार निर्माता कंपनी है। दूसरे वर्ल्ड वार में उसने B-24 विमान जो अमेरिका के लिए उसी ने बनाया था, फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड की कंपनी ने बनाई थी। और 18,000 यूनिट्स स्टेबल किए थे मिशिगन में, अमेरिका में, जिसमें 8,000 तो सिर्फ फोर्ड ने स्टेबल किए थे। और अब देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में 1942 में जब अमेरिका ने एंट्री किया है, अपने जो युद्धक विमान के जरिए उसने पूरे सिनारियो को चेंज किया था। फोर्ड और अमेरिका कहाँ से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हेनरी फोर्ड ने किस तरह से काम किया था। संयुक्त राष्ट्र जो वर्ल्ड वार से पहले, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी, उसकी पूरी ब्रांडिंग का काम हेनरी फोर्ड को दिया गया था। मतलब पूरा जो नेक्सस उस जमाने से मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया कैसे काम करती थी उनके साथ अमेरिका। अब ये प्रयोग क्या किया इन्होंने कि एक रेमन मैग्सेसे को बैठाया गया, बिल्कुल बाहरी आदमी था, भारत का अरविंद केजरीवाल, फिलीपींस का रेमन मैग्सेसे, वो बाहर से लाया गया। और उस जमाने में इंटरव्यू है उनके CIA के जो हेड हैं, $30 बिलियन उस जमाने में खर्च हुआ था सिर्फ रेमन मैग्सेसे को स्टेबल करने के लिए। और रेमन मैग्सेसे जब स्टेबल हो गए तो उसके ठीक 3 साल बाद 1957 में रॉकफेलर और फोर्ड ने मिलकर एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की। पूरे साउथ एशिया में ये जो वामपंथी आंदोलन उसको खत्म करने के लिए, हथियार की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार की तरफ उसको पूरी ब्रांडिंग की। अब भारत में जब आप आते हैं, देखते हैं कि ये कहते हैं कि सारे रेमन मैग्सेसे वाले ही आने चाहिए। भारत में आप देखिए कि जितने NGOs हैं और जितने भी देश तोड़ने की स्थिति में आप जब बहुत डीपली अंदर जाते हैं, वो सारे रेमन मैग्सेसे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
रेवेन्यू मैक्सेस से उनकी ब्रांडिंग करती है, पहले बिल्कुल खड़ा करती है, उसको एक मीडिया का चेहरा बनाती है। अब कैसे अरविंद केजरीवाल नौकरी छोड़ के वो अमेरिका जाते हैं, उन्होंने अभी तक अपने आप को नहीं कहा, और अश्विनी जी जानते हैं उनके पासपोर्ट पे अमेरिका कहाँ कहाँ वो गए हैं, वो अपना पासपोर्ट कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप मांग के रख जाइए, वो नहीं करेंगे। वो अमेरिका गए हैं जॉब छोड़ के, 2 साल अमेरिका में रहा है, वहां से आए हैं, उनको रेवेन्यू मैक्सेस से पुरस्कार मिली। उस दौरान वो किया क्या, उसने कुछ भी नहीं किया। आंदोलन खड़ा हुआ 2010, उससे 2010-11 में, ये उससे पहले उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप एक IRS हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने एक IRS के रहते पोस्ट पे रहते हुए भ्रष्टाचार के कितने मामले सॉल्व किए? कोई मामला नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप देखिए वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। वहां से मीडिया जो ब्रांडिंग हुई रेवेन्यू मैक्सेस की, वहां से इन लोगों का पूरा जो है। फिर एक चीज उसमें और आ गया, अमेरिका, उसी वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट में आ चुकी है, परिवर्तन नाम की कोई NGO नहीं है। जो कहा जाता है परिवर्तन, कोई NGO नहीं है, वो NGO है संपूर्ण परिवर्तन नाम से, उसमें कैलाश गोदुका और ये लोग उसके हेड करते हैं। तो फोर्ड ने, वो उनका पूरा इंटरव्यू है, फोर्ड ने उस जब $80,000 दिया संपूर्ण परिवर्तन को कि आप भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा कीजिए। ये उनके जो अध्यक्ष हैं कैलाश गोदुका, उनका इंटरव्यू है, उनका पूरा रिपोर्ट है कि संपूर्ण परिवर्तन NGO में, और अरविंद और मनीष सिसोदिया संपूर्ण परिवर्तन में काम कर रहे थे और बड़ा विवाद चल रहा था। ये लोग सैलरी चाह रहे थे, 2002 की बात है ये। हाँ, सैलरी चाह रहे थे वो, और इन लोगों ने कहा कि सैलरी कैसे ले सकते हो, आप सरकारी नौकरी हो। उसने कहा कोई मैटर नहीं, ये सैलरी चाह रहे थे। $80,000 आया, संपूर्ण परिवर्तन के नाम से आया, और उस पर विवाद हो गया। कैलाश गोदुका ने कहा कि हम फॉरेन फंडिंग से अपने देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, ये विदेशी पैसा है, विदेशी किस हित में काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों में वो अपने हित के लिए काम करते, तो हमारे लिए नहीं करते। इस पे डिस्प्यूट हो गया, भयानक डिस्प्यूट हुआ, और अरविंद मनीष आगे वहां से हटे वहां से, और उसके बाद उन्होंने कबीर की स्थापना के लिए इन लोगों ने काम किया। और कैलाश गोदुका ने लेटर लिख के $80,000 फोर्ड को लौटा दिया कि हम आपके पैसे से ये कोई मूवमेंट खड़ा नहीं करना चाहते भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस वक्त क्या हुआ था, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं परिवर्तन में था, संपूर्ण परिवर्तन के नाम से ये रजिस्टर्ड थी संस्था, आपस में विवाद हो गया, अरविंद मनीष वगैरह अलग हो गए, मैं भी साथ में था, और परिवर्तन.com डोमेन था जहाँ पर वेबसाइट होस्ट हुआ करती थी, उसका कंट्रोल अरविंद के साथ में एक ऋषि लड़का था, उसके पास था। तो परिवर्तन को बिना रजिस्टर कराए ही परिवर्तन के नाम से चलते रहे, और ये चलने का सिलसिला 2010 तक चला है, जिसमें तरह तरह के लोगों ने काम किया है बिना रजिस्ट्रेशन के। बैंक बिना रजिस्ट्रेशन परिवर्तन को सुंदर नगरी में ऑफिस हुआ करता था, सुंदर नगरी में ऑफिस हुआ करता था। आप देखिए नीदरलैंड दूतावास से बिना रजिस्टर्ड परिवर्तन को पैसे नहीं, परिवर्तन को पैसा, संपूर्ण परिवर्तन रजिस्टर्ड था, है, उसमें कैलाश गोदुका, कर्नल पांडे और बहुत सारे विजय गोयल हैं, काफी सारे वो संतोष कोहली काम करती थी जो मर गई। संतोष कोहली उसमें काम करती थी, राजीव ऋतु वगैरह थे जिन्होंने पारदर्शिता संस्था अलग से बनाई, क्योंकि उनको परिवर्तन में पारदर्शिता नहीं दिखाई थी, इस बात पर उन्होंने उनको अलग निकल के। और जब ये चीज हुआ कि इन्होंने पैसे लौटा दिए, तो अरविंद और मनीष इसी के लिए तो लड़ रहे थे, वो पैसे उन्होंने अपने NGOs के जरिए लिया, और यहाँ जो एक मूवमेंट के लिए, अब मूवमेंट के लिए सब, एक मूवमेंट अरविंद को तो कोई जानता नहीं, रेवेन्यू मैक्सेस से पाने के बावजूद ब्रांडिंग। मेरे को याद है दैनिक जागरण से, नई दुनिया से पहले मैं दैनिक जागरण में था, अरविंद का बताता हूँ कि एडिटर और ब्यूरो चीफ इन सबके साथ वो बैठक करते थे, हम लोग वहाँ भी आए थे दैनिक जागरण में, और उन्होंने कहा कि हम एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, ये रहेगा, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आंदोलन से बहुत पहले वो हर मीडिया हाउस में जा रहे थे, और आप देखिए सारे पत्रकारों से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा अच्छा सा उसने जो है ना एक ग्लैमर दिया था पत्रकारों को भी। तो हम चूंकि दैनिक जागरण में मैं था, मुझे जानकारी है इस बारे में, उन्होंने कहा कि हमें कवर दीजिए। आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, लेकिन कवरेज की प्लानिंग उसकी शुरू हो गई। फिर लोग रामदेव बाबा के पास गए, और रामदेव बाबा के मन से अन्ना नॉर्थ इंडिया में आप कहें कि लॉन्च हुए हैं, अरविंद लॉन्च हुए हैं। रामदेव बाबा चीज़ों को समझने लगे थे, बहुत सारा चीज़, उनके आंदोलन को भी डिस्ट्रॉय हुआ बहुत सारा चीज़, और तब तक इन्होंने अन्ना को लॉन्च कर दिया था। पैसा वहाँ फॉरेन का पड़ा हुआ था, और पहली शर्त यही थी फोर्ड की कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। वो चीज़ें संपूर्ण परिवर्तन के जो अध्यक्ष थे उनके पूरे बयान में कि हम लोग पैसे लौटाए, क्योंकि वो इस बात के लिए कह रहे थे, हम नहीं तैयार थे, इस बात को ये अरविंद यहाँ पर ले आए पूरी फॉरेन फंडिंग से। और वही कबीर है,
आप देखिए कि बिना रजिस्ट्रेशन 3 साल लगता है इंडिया में, आप 3 साल काम करेंगे तब जाकर कोई फंडिंग शुरू होती है विदाउट रजिस्ट्रेशन। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है 2012 की, देश की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। और गृह मंत्रालय में पता नहीं कैसे जो फेरा का मामला है, फॉरेन फंडिंग आप लेंगे तो सरकार परमिशन देती है, बिना रजिस्ट्रेशन के एनजीओ के लिए सरकार ने परमिशन देती है। तो नेक्सस दिख रहा है, उसके बाद बोर्ड इनको पैसा देता है, रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। पूरा का पूरा नेक्सस अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव और मेधा पाटेकर, इन चारों का अगर 2004 से 2014 का पासपोर्ट की डिटेल सामने आ जाए तो कोई भी इंटरव्यू में, कोई भी जो नेशनल टीवी में है, कोई भी कह सकते हैं उनको कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी हम सारे स्कैन करके पब्लिक को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। किसी ने क्यों पूछा? क्यों पत्रकारों ने नहीं पूछा है, क्यों नहीं पत्रकारों ने पूछा है, हमने लेकिन कई बार उठाया है, हमने अपने ट्विटर पे भी डाला है, वो 4 अपने अगर पासपोर्ट डिटेल दे दें। आप देखेंगे कि जो शुरू में मीडिया हाउस, पत्रकारों की ही बात बता देता हूँ। अब आप देखिए कि जैसे IBN 7 इसको सबसे ऊपर उठाया था, और IBN 7 जो है, आप उसके देखिए जो एडिटर इन चीफ है वो पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है, और उसको फंडिंग आती है रॉकफेलर से। यहाँ फंडिंग आ रही है रॉकफेलर से, जो पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी फंडिंग आ रही है रॉकफेलर से। राजदीप सरदेसाई रॉकफेलर के वो पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है, और अरविंद को जो फंडिंग आ रही है फोर्ड, रॉकफेलर, ये सारे जो है बड़े पैमाने पे मीडिया में भी विदेशी पैसा है। मीडिया ने कभी नहीं पूछा, एकदम नहीं पूछा। मीडिया हमेशा उसको सॉफ्ट, आप देखिए मीडिया उसको एक सॉफ्ट क्वेश्चन के आधार पर चल रही है उसके साथ। कभी भी किसी मीडिया ने एकदम नहीं पूछा है। और अश्विनी जी, आप दोनों से ये भी सवाल है कि आप सरकार को क्यों खुली छूट दे रहे हैं? नहीं, हमने कहा कहीं ना कहीं तो सरकार भी नहीं, ये कहा ये मैंने तो कि सरकार नहीं, ये तो साफ सरकार की रिपोर्ट है। सरकार की रिपोर्ट कहती है MHA हैज गिवन प्रायर परमिशन। कैसे दे दिया? तो गृह मंत्री ने परमिशन दिया हुआ है, इसका मतलब गृह मंत्री से उनकी मिली भगत। उस समय गृह मंत्री जो पहला उस समय 94 में शिवराज पाटिल, और अभी पिछले हफ्ते 2004 में कबीर के फॉरेन फंडिंग के बारे में मैंने मांगा कि इन्होंने जब आवेदन किया तो, और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ जमा कराई होगी, और फिर प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जमा कराई होगी, ये तीनों चारों चीजें मैंने मांगी। उन्होंने कमर्शियल कॉन्फिडेंस के तहत उसको मांगा। गृह मंत्रालय की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में देश का गृह मंत्री, एक पावरफुल गृह मंत्रालय, बहुत इंटरनली सारी चीजों को देखता है, वो रोता हुआ गया दिल्ली हाई कोर्ट में, जी हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये लोग नहीं दे रहे। ये क्या तर्क क्या है? देश का गृह मंत्रालय ये एफिडेविट फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जी हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, हमें जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो तो जब भी आप जाते हैं और आते हैं तो वो तो इंडिया के इमिग्रेशन कंप्यूटर में आ जाती है, वो तो कोई भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई भी, चाहे उनके पासपोर्ट कहाँ गए, किस कंट्री में गए, वापस आए, वो तो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में रहती है। कई लोगों ने RTI मांगा है, नहीं, आप देखिए अभी अमेरिका ने, अभी का उदाहरण है, 10 दिन पहले का अमेरिका ने सोनिया गांधी से मांगा था कि आप अपने पासपोर्ट का डिटेल दीजिए कि आप उस दौरान अमेरिका में थी या नहीं, जब हमारे कोर्ट ने आपको एक नोटिस जारी किया था, समन जारी किया था सिख दंगे को लेकर। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी कह रही थी या सरकार कह रही थी कि सोनिया जी अमेरिका में थी, तो अमेरिका ने कहा कि हमें आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उस दौरान अमेरिका में थी भी या नहीं थी। सोनिया जी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये गया है बयान कि हम सिक्योरिटी पर्पस के कारण हम इसका डिटेल नहीं दे सकते। तो राजीव जी, चर्चा यहाँ तक पहुँचने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया, मैंने सेफ्टी वाल्व की बात की। सेफ्टी वाल्व साफ साफ दिख रहा है कि अगर गवर्नमेंट इज आल्सो प्लेयर इन दिस एंटायर गेम and they thought that people's anger will soon go out of control, so we need some mechanism which appears to be like a revolution but it is actually not, and it will let out the steam of people. What I'm hearing is basically the issues you have is that he's not a man of his word. He says one thing, he does another thing. He's not democratic in his demeanor. He's not genuinely patriotic but very opportunistic. He's just going wherever the opportunity is best. He's violating probably some foreign funding laws, and he's also strangely disappeared in foreign countries and will not disclose his passport publicly. And this is not only true of him but 4 or 5 top people who are also other top people in his organization. And the idea that Congress has used him as a safety valve or B team, these kind of things have come out quite a lot of time, a lot of people saying.
that is basically a way to, sort of, Congress could say, okay, he has won, we are behind, but then he will not prosecute them. Actually, I have some inner information to tell about this also. I'm talking about September, October, November 2013, when there was intense discussion and speculation as to what exactly will be the result of Delhi Assembly elections. And the Aam Aadmi Party, you will be surprised to know, and the viewers will be stunned to know, actually did not want to win the election. They wanted a tally of about 12 to 15 seats. Because they knew they were not competent enough to govern. So they were scared of 35 plus vote. और सभी कह रहे थे कि इनको तो 7-8 सीटें मिलेंगी, ज्यादा इससे ज्यादा तो मिलेगी नहीं। वो खुद कह रहे थे 47। किसी ने उनसे पूछा, how did you reach this figure of 47? उन्होंने कहा ये जो 70 होता है उसका 2/3 होता है 47। इसलिए मैंने 2/3 का आंकड़ा लगाया कि 47। कोई भी इंटरनल सर्वे नहीं हुआ था जिससे पता चला था कि उनको 47 सीट्स मिलने वाली है, और मिली भी नहीं। अब उसके बाद देखिए, ये बार चर्चा यही हो रही थी, चाहे मेरी मनीष सिसोदिया से चर्चा हो, चाहे और भी जो अंदर के लोग हैं, वो बार ये कह रहे थे कि अगर हमें बस 2-3 सीट मिलती है तो पूरी पार्टी बिखर जाएगी, और हमें अगर 35 से ज्यादा सीट मिल जाती है तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमें सरकार चलाना आता ही नहीं। तो इसलिए सुरजीत जी, अगर 12 से 15 से सीट मिले हमारे लिए बेस्ट प्रोपोजिशन। उनको खुद नहीं पता था 28 मिल जाएंगे। And I also suspect, now I can say with a lot of confidence, that this movement, the way it has been coming up, it looks that the entire game plan is to prevent a rightist nationalist party from coming to power at the center. Because I feel that there is a lot of stake of foreign powers in this country, that the present government stays in power because they will have deals to make. Either present government or chaos. Yeah, chaos. But they don't want Modi. Because they cannot bribe Modi. If you bribe Modi, then Modi needs the money. He doesn't have Swiss bank account. They need someone. They can easily bribe in foreign countries, and everything will appear here to be hanky-dory. Everything is cool. And now the way they have jumped into this Lok Sabha, I expected that Arvind Kejriwal, after becoming Chief Minister, he should have governed. So Ashwin, now you tell us whatever you want to about this whole situation. What is your analysis? Actually, whole situation ये है कि इसमें कई सारे मुद्दे हैं। मैं तो अंदर से देखता था, नक्सली आ रहा है, नक्सली अपनी बात पूरी रख रहा है, नहीं साहब ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मानते नहीं है गोली से। मतलब कई बार हमने ऐसे देखा कि कुछ नक्सली छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, वहां उनको पुलिस ढूंढ रही है, वो हमारे ऑफिस में आते हैं, अरविंद से मिलते हैं, अरविंद उनको प्रशांत भूषण के पास ले जाते हैं, इसका जरा केस देख लो, वहां पुलिस ढूंढ रही है, और वो बता भी रहा था मुझे पुलिस ढूंढ रही है वहां पे, मैं तो भगड़ा वहां पे, उसको ही वो प्रोटेक्ट करते हैं। कश्मीर के आते हैं आतंकवादी, जिसको पता है हमारे ऑफिस में, मैं लीगल से देखता था, हमारा वहां पे ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे लीगल से हमारा अलग कमरा था, उसको मैं हेड करता था, इस पार्टी का पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा था, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एथॉरिटी नहीं थी सब पार्टी की तरफ से, मेरे साइन से सब कुछ होता था। अब लोग देख रहे हैं कि बंदा आया हुआ है, अच्छा उनकी वर्डिंग कैसी होती है, वो दिल्ली को और भारत को अपना ऐसे नहीं बोलते, मतलब बोलते हैं इंडिया गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार नहीं बोलते हमारी केंद्र सरकार, वो कहते हैं इंडिया की केंद्र सरकार, ऐसे उनकी बातें वैसी होती है। ये जानते हुए भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। पीडीपी में एक नेता था रजा मुजफ्फर भट्ट, जब कसाब पकड़ा गया तो बोला इसको मुस्लिम के नाम पे पकड़ा है, कसाब का जब फांसी हुई, अफजल गुरु को फांसी हुई, बोला ये इनोसेंट है, उसने वहां पर कहता कैंपेन चलाया। अभी जब यासीन भटकल पकड़ा गया तो बोला ये मुस्लिम के नाम पे पकड़ा गया है, ये भी निर्दोष है, तो उसको पीडीपी ने बाहर कर दिया, और पीडीपी ने बाहर कर दिया, और अरविंद केजरीवाल ने उसको श्रीनगर से लोकसभा टिकट दे दिया। क्या है ये? और एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने एक वाड्रा वाला केस सुना होगा, वाड्रा लैंड डील। एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है अशोक खेमका, जिसका 22 साल की नौकरी में 46 ट्रांसफर हुआ है, उसको इन्होंने कैश भी कराया। बाद में एक दूसरा ऑफिसर वहां आया, अशोक खेमका ने जब लैंड डील कैंसिल किया तो उसका ट्रांसफर हो गया। वहां पे एक दूसरा ऑफिसर आया युद्धवीर ने आके वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया, और उसके बाद अब कांग्रेस युद्धवीर को रिवार्ड नहीं कर सकती, कांग्रेस टिकट कैसे दे दे? कांग्रेस ने योगेंद्र यादव को बोल के आम आदमी पार्टी टिकट दिलवा दिया। सर 23 बाकायदा क्रिमिनल जो माओवादी हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। और यहाँ से राजीव जी हम इंटरनेशनल, हम लोग नेशनल बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग मेरे ख्याल से जो इस स्तर पे जो बात आई है,
हमें अब इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। आप देखिए कि किन किन लोगों को टिकट मिल रहे हैं और कितना बड़ा ये इंटरनेशनल नेक्सस है। राजमोहन गांधी को टिकट मिला ईस्ट दिल्ली से। जब गुलाम नबी फाई आपने सुना होगा, उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो ये पैरवी करने गए थे कि उसको छोड़ दो। मुंबई से टिकट मिला मेधा पाटकर को। मेधा पाटकर जब नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रही थी तो उनकी पैरवी कर रहे थे एक पैट्रिक मैककली जो इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क के हैं। इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क को प्रमोट कौन करता है? अंजना चैटर्जी करती है। अंजना चैटर्जी कौन है? वो गुलाम नबी फाई के साथ काम कर चुकी है और राजमोहन सिंह के साथ भी काम कर चुकी है। अच्छा, अब ये बताएं, जब ओरिजिनल आम आदमी पार्टी की जो पोजीशनिंग थी और अब पोजीशनिंग वोटर्स के सामने चेंज हो गई है, ओरिजिनल पोजीशनिंग थी तो लोगों को लगता था कि वो बीजेपी से वोटें छीनेंगे क्योंकि वो भी एंटी करप्शन है, बीजेपी भी एंटी करप्शन है, तो वो नो चॉइस है। दोज हू डोंट वांट कांग्रेस हैव चॉइस। लेकिन क्योंकि अब वो इतने लेफ्टिस्ट बन गई है, इतने नक्सलाइट के लोग हैं, कश्मीर सेपरेटिस्ट के लोग हैं, और अब उनकी जो मीडिया पहले सपोर्ट कर रही थी, मेरा पॉइंट ये है कि पहली जो पोजीशनिंग थी वो बीजेपी से वोटें छीनने लगी थी क्योंकि वो भी एंटी करप्शन थे, वो भी एंटी करप्शन थे, तो उन्होंने बीजेपी से ही वोटें छीननी थी। अब वो बीजेपी से छीनेगी या जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं उनसे छीनेगी, क्योंकि अब उनकी पोजीशनिंग जो है, अब जो उनका कैंडिडेट है वो लेफ्टिस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि वो कैंडिडेट लेफ्टिस्ट कैंडिडेट है, जिस एरिया में लेफ्टिस्ट कैंडिडेट है, तो वो बीजेपी से कैसे छीनेगी? वो तो फिर बाकी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनसे छीनेगी। इसका आपका क्या? सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन कुछ एक शहरों में जो यूथ है, जो कॉलेज के लड़के हैं, अभी थोड़ा उनके चेहरे, मतलब उनको भी थोड़ी पूरी सच्चाई नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा हम लोग चारों तरफ जा भी नहीं पाए हैं। मीडिया ने क्या किया, उनको दिखाना बंद कर दिया है। आप जरा समझिए, लेकिन एक्सपोज नहीं किया मीडिया उन चीजों को फैक्ट नहीं रख रहा है, वो फोर्ड फाउंडेशन का नेक्सस नहीं रख रहा है, अरब देशों का जो पैसा आ रहा है मीडिया उसको नहीं दिखाया अभी तक, तो अभी एक्सपोज नहीं हुए। इसमें आप देखिए, किसी भी इलेक्शन के दौरान आप इंडिया में आइए और जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन बूथ्स पे, उन इलाकों से आप गुजरते हुए जाइए, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द पुअर एरियाज आर बेटर अटेंडेड ड्यूरिंग द वोट्स। देयर विल बी ह्यूज लॉन्ग क्राउड ऑफ वोटर्स वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। और आप किसी मध्यम वर्ग के इलाके में जाइए, किसी पॉश कॉलोनी में जाइए, इक्का दुक्का लोग 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बाद आके वोट दे रहे हैं। तो ज्यादा वोट की संख्या गरीब आदमी की है, मध्यम वर्ग में वोटिंग की संख्या कम है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है वो देश का मूड सेट करता है। मध्यम वर्ग जहां कहता है कि इस दिशा में चलो, उस दिशा में पूरा देश चलने लगता है। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी जो ब्रांडिंग की थी पहले, एंटी करप्शन ब्रांडिंग, इनको दिखा कि मध्यम वर्ग के वोट से हम जीत नहीं सकते, तब जाकर उन्होंने बाटला हाउस का बयान दिया ताकि मुसलमान साथ में आ जाए, तब जाकर उन्होंने मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली का बयान दिया ताकि गरीब लोग साथ में, तौकीर रजा का साथ दिया। हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास का साथ आना सिर्फ एक दिशा निर्देश करता है। अब आपका दूसरा सवाल यह था कि बीजेपी क्यों घबरा रही है, बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है? तो अश्विनी जी ने बताया कि युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है और सारा का सारा जो युवा वर्ग है वो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड या डिसइल्यूजन नहीं हुआ है। और दिल्ली का जो रिजल्ट है, दिल्ली के रिजल्ट में जब इसका कास्ट वाइज ब्रेकअप किया गया तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका बहुत स्ट्रांग एक बनिया सपोर्ट है। तो देखा गया कि 35% बनिया ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जो कि बीजेपी के लिए लॉस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने वोट दिया और झुग्गी झोपड़ी वालों ने वोट दिया, बनियों ने भी वोट दिया। और मेरा पार्टनर तो कितने लोग हैं जो बीजेपी वाले वोट देंगे? दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। अब क्या हुआ, 1920 1925 इस समय सीपीआई सीपीएम वगैरह की स्थापना हुई, लेकिन इतने जद्दोजहद के बावजूद 80-90 साल में वो कुछ भी नहीं कर पाए। 3 राज्यों में सिमट कर रह गए, बंगाल, केरल और त्रिपुरा। इनको दिखा कि हम अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो हमें एक बैंड वैगन चाहिए, एक बड़ा व्हीकल चाहिए। आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत शोर हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो सबसे पहले क्या होता है, सीपीआई एमएल के जो एक बहुत ही पेटी क्रिमिनल थे, हमसे उन्होंने कितना झूठ बुलवाया। देखिए, गोपाल राय की मैं बात कर रहा हूँ। जब सीमापुरी इलाके में हम लोग प्रचार पे जाते थे
तो गोपाल राय ने हमें बताया था कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ करता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उस दौरान क्रांति के दौरान मुझे गोली लग गई, इसलिए मैं पार्शियली पैरालाइज्ड हूँ। और पहली बार आपको कोई अगर कहता है, आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसी कोई कहानी सुनाता है, तो आप शक नहीं करते। तो हमने भी लोगों को बताया ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, इनको गोली लगी इसलिए ठीक से चल नहीं पाते। गोली कैसे लगी? लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में साइकिल और मोटरसाइकिल के स्टैंड को लेकर ठेका दिया जाता है, उस ठेके की लड़ाई में उनको गोली लगी एक राइवल गैंग से। ठीक है, ये गोपाल राय की कहानी है। कमल मित्रा चिनॉय, उनकी एड़िया घिस गई सीपीआई के लिए लड़ते लड़ते जेएनयू में, वहां वो कुछ नहीं कर पाए, वो आ जाते हैं इसमें, और वो भी सेपरेटिस्ट के साथ लगे हुए, उनके ट्वीट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। बाबू मैथ्यू है। तो तमाम लेफ्टिस्ट जो हैं, छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी आ जाती है, उड़ीसा में सब्यसाची पांडा आ जाता है, तो इनको लगता है कि सीपीआई और सीपीएम जो है दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, तो हमें एक नया व्हीकल मिल गया है। तो एक तरफ कांग्रेस का गेम चल रहा है, एक तरफ इंटरनेशनल गेम चल रहा है, और कम्युनिस्ट लोग अपने गेम खुद चला रहे हैं। कॉर्पोरेट का भी गेम है बहुत। some corporate people supporting them. जो दो कारपोरेट्स फंडिंग कर रहे हैं वो दोनों आप अगर उनकी हिस्ट्री देखो ना, वो दोनों कांग्रेस के, एक प्रेजेंट में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक इस बार नहीं जीत पाए। ठीक है, वो दोनों कारपोरेट्स में फंडिंग कर रहे हैं दोनों, और वो ऐसे खुश होकर नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो कांग्रेस के कहने पे कर रहे हैं। वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 10 साल से 15 साल से, अभी भी वो लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस उनको बैकिंग करवा रही है। आप जरा इसमें पूरा, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस जिसने इस बार 425 कैंडिडेट उतारे हैं, बीजेपी इतनी पुरानी 410 कैंडिडेट उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने 455 कैंडिडेट उतारे हैं इस बार, 455, इंडिया लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी ठीक है। कैसे? तो फंडिंग पूरी हो रही है। आप दिल्ली में चले जाओ, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 लोग, 70 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, हर विधानसभा में 10-10 फुल टाइम पेड वॉलंटियर्स हैं, बकायदा उनको 25,000 रुपये दिया जाता है, उनको घर पर चले, कहाँ से काम करेंगे? वो फंडिंग बकायदा कारपोरेट हाउस दे रहा है, मतलब 700 लोगों का 25,000, लगभग कितना हो गया? 2.25 करोड़ रुपए महीना। 2.25 करोड़, तो 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए वो हर महीने दे रहा है, कैसे दे रहा है? और कांग्रेस के कहने पे दे रहा है, कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये इसमें कांग्रेस का गेम है अपना। आज कांग्रेस ने अखबार में लिखा है कि दे विल सपोर्ट अ नॉन एनडीए पार्टी। उनको अपनी हार दिख रही है, तो अब कैसे भी करके इनका उनकी नहीं, मैं सर इनमें दोनों की, मैं आपको बताऊं इनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा लगता है कि मोदी आ जाएगा तो काले धन वाली जांच करा लेगा, नंबर 1। और आम आदमी अरविंद एंड टीम को लगता है कि मोदी आएगा तो ये जो विदेशी मामला चल रहा है, जो 11,000-12,000 करोड़ हर साल आ रहा है, कहीं इसकी जांच करा लेगा। भाई ये रिपोर्ट कांग्रेस तो दबा के बैठी हुई है, अगर इसको नया गृह मंत्री खोल देगा तब क्या होगा? फिर तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ढंग की जांच हो जाए तो मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी लीडरशिप है ना, कि पूरी नंगी हो जाए। कुडाकुलम परियोजना में जब बहुत ज्यादा अवरोध पैदा हो रहा था तो सरकार ने जांच के आदेश दिए, 9 एनजीओ को सरकार ने रद्द की, मतलब उनको पर कार्रवाई की है। और कुडाकुलम परियोजना जो कि रक्षा के सहयोग से हो रहा है और अमेरिका बहुत फंडिंग कर रहा है, उसको होना नहीं चाहिए। उस कुडाकुलम चर्च लगी हुई है, चर्च के लोग अरेस्ट भी किया, तो और उसको पार्टी का उम्मीदवार किसने बनाया है? आपने, ऊपी उदय कुमार। अच्छा, आपने चर्च की बात की, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के गोल्ड डाकखाने के बगल में एक चेतनालय एनजीओ है, जो क्रिश्चियंस का एनजीओ है। उसका काम है हरियाणा के अपना मेवात एरिया, जो हरियाणा की दलित बस्तियों में कन्वर्जन कराता है, हिंदुओं को कन्वर्ट कराता है क्रिश्चियन के लिए। आपके सीलमपुर वाले एरिया में, दिल्ली के जो हमारा एरिया है ना सीलमपुर का, वो जहाँ पे दलित एरिया है, उनको उसने बहुत कन्वर्ट करा दिया। उसका नाम है चेतनालय, ऑन रिकॉर्ड आपको बोलता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की ज्यादातर मीटिंग उसी चेतनालय में हुआ करती थी। वो फादर करवाता था, फादर पूरा फ्री ऑफ कास्ट, पूरा हम लोगों का खाने का, चाय का, नाश्ते का सभी इंतजाम कराता था। आप कभी चेतनालय को, ये जो गोल्ड डाकखाने से आगे कालीबाड़ी वाले मार्ग पे है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहा है, अब लगता है कि there is someone pulling this. I have been for 20 years doing this research. सिर्फ ये काम ही मेरे बहुत many projects. One of the projects is because I'm in US, I can get lot of just वहाँ पर RTI है, वहाँ पर Freedom of Information Act है, तो मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। ये जो मेरे को लगता है ये हो रहा है कि ये इंडिया को कंटेन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, आपस में फाइट करने के लिए पुराने जो ब्रिटिश सिस्टम था वैसे ही चल रहा है। अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो ऑलवेज the West needs
टू कीप इंडिया अंडर कंट्रोल। अब चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो तो स्टूडे पहले कर सकते थे, पर उन्होंने गलती की। वो कह रहे हैं कि अब चाइना हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, वो बिकम टू स्ट्रॉन्ग। और इंडिया को दे डू नॉट वांट कि वो भी चाइना के जैसे ही बन जाए, बिकॉज देन इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। सो कह रहे हैं इंडिया को इट्स नॉट टू लेट, इसको थोड़ा सा कमजोर रखो, आपस में लड़ने दो, थोड़े से टुकड़े सेपरेट भी हो जाए तो कोई अच्छी बात नहीं। तो उसके लिए उनको पहले तो प्लान ए सोनिया प्लान, वो जब जितनी चली तो चली, अब वो डाउन हो रही है तो प्लान बी आ गया केजरीवाल। तो अब केजरीवाल नहीं चला तो प्लान सी है कि चलो शायद कोई और तरीका, जो सोनिया भी नहीं होगी रन करेगी या केजरीवाल भी नहीं करेगा, कोई सम अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में उसमें फ्रैगमेंट्स हो गए, थोड़ी chaos होगी, जिसके साथ आपस में वी कैन बी अ मोर अपॉर्चुनिटी टू ब्रोकर दिस डील दैट डील, अपने कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट अपने रोड अपने एंड वी कैन हैव आवर फंडेड पीपल आल्सो प्लांटेड हियर एंड देयर, इन एक्सचेंज वी विल गिव सपोर्ट, तो फिर वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। और दूसरी बात ये है कि फॉरेन फंडिंग जो फॉरेन लोग सपोर्ट करते हैं, दे प्रिफर पीपल इंडियंस हु आर कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि you can blackmail them. You can always call and say कि if you go beyond a certain amount, तो we can expose this about you. उनके पास Indian politicians, Indian industrialists, Indian जितने भी NGO वाले हैं, इनको इनके बारे में काफी उनके पता है. They know more about it than raw IB type people. They know more about it. So they also know how to keep you in control. Honest. तो जो बहुत ही ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लीन है, उनको नथिंग टू हाइड, तो वो उसको नहीं चाहते, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल सच अ पर्सन, दे कैन नॉट ब्लैकमेल हिम, उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिकेगा नहीं। सो दिस इज माय व्यू व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई फील कि ईदर whether you like Modi or not, his person, I feel that the only choice to prevent this thing from getting worse, by looking at what the choices are, the only choice is Modi. It will either be Modi with a strong victory, who can, whether he's good, bad, time will tell, but we have to give him a chance. If he's elected, he deserves a chance to prove. Either it will be that, or it will be something, lot of small parties यहाँ वहाँ मिल मिला के with foreign people helping यहाँ से वहाँ से, unstable, और उसमें इंडिया का काफी प्रॉब्लम है। That will be maybe the end of United India, because वो इतनी momentum, you can't say कि वो फिर 5-10 साल के बाद एक और चांस आएगा, I am not sure चांस आएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। This is the last chance. I really think this is the last chance for India to not let these kind of forces take control. अब उनको भी ये पता है कि if Modi comes, तो सबकी छुट्टी होने वाली है। सबकी छुट्टी होने वाली है, उसने ऐसी हाउस क्लीनिंग करनी है, और ये जो हाउस क्लीनिंग है, इट इज नॉट जस्ट कांग्रेस एंड केजरीवाल वगैरह, इवन बीजेपी की हाउस क्लीनिंग। इट इज जितना ज्यादा मोदी स्ट्रॉन्ग वोटिंग से आएगा, स्ट्रॉन्ग सीट से आएगा, उतना ज्यादा उसका हैंड होगा टू डू क्लीनिंग ऑफ बीजेपी ऑल्सो। मतलब he doesn't need all the people, he doesn't have to oblige anybody, he can say चलो लोगों को all the ones that are no good निकाल। But if that is not the case, then he can't be strong. तो फिर इंडिया में जो है थोड़ा बहुत यहाँ चलना, थोड़ा एक कदम आगे एक कदम पीछे, ऐसे जो zigzag इंडिया चलती रहती है वैसे चलती है। और वैसे इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ स्टैमिना, इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा आपकी बात में। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हमारे सारे टॉप के लोग थे, मैं भी इसमें बैठा हुआ था एज ए लीगल सेक्रेटरी। योगेंद्र यादव की जो वर्डिंग थी, अगर ये आ गया तो भाई 10 साल तो रहेगा, हो सकता है 15 भी रहे। दिस वाज द वर्डिंग। मतलब मैं देख रहा था वो कैसे घबरा रहे, कह रहे अगर ये आया तो 5 की बात, मतलब 1 टर्म की बात ही नहीं कर रहे थे, बोले अगर आ गया कि देखो यहाँ गुजरात में चिपक गया है, वैसे ही दिल्ली में चिपक जाएगा। ये बहुत चिपकू है उनके वर्ड, योगेंद्र का वर्ड था, ये बहुत चिपकू है, 10 साल तो रहेगा, हो सकता है 15 भी रहे। और इसलिए आप इसलिए देखेंगे कि एंटी मोदी जितने एलिमेंट्स थे वो सब आप में है। जैसे आप देखिए तीस्ता सीतलवार या फिर आशीष खेतान जो है,
या फिर आप देखिए जो अभी जासूसी कांड को जो लेके आए हैं IAS प्रदीप शर्मा, वो उनके बड़े भाई कुलदीप शर्मा IPS, ये जितने लोग हैं सब आपके मेंबर हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी रिपोर्ट आई है स्वीडन का कि जो थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल में, कि भारत में ये पिछले साल में, आप देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये पिछले 5 साल में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश हो गया। और जनरल BK सिंह का जो वक्तव्य है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि अगर 20 दिन युद्ध हो जाए तो हमारे पास गोला बारूद नहीं है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश में तो नाम है हमारा, पर हमारे पास हथियार भी नहीं है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसी चीजों पे मोदी ऊपर से मोदी लगातार कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनते ही इंडिजिनस मिलिट्री प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। मतलब इतना बड़ा जो इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट है वो तो तब हो जाएगा अगर मतलब 111% की बढ़ोतरी 5 साल में, 111। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश भारत, चाइना और पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा हम हथियार करते हैं, लेकिन अभी बात हो जाए तो 20 दिन हम नहीं कर सकते। ये जनरल का I think Kejriwal should explain for honesty and probity that why he did not utter a word against Modi till Delhi elections. Because I remember the cadre was saying CM Kejriwal, PM Modi. So he knew that the middle class which was with him, maybe Surjit would like to add. Suresh, he actually deliberately avoided uttering a word against Modi. ये हमारी कई बार बात होती थी, बोलते मोदी का नाम नहीं लेना, हमने मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो जो कह रहे हैं ना दिल्ली के लिए CM और PM के लिए मोदी, वो कहीं हमारे वोट हमारे हाथ से ना निकल जाए। Because you know in one of the lot of my friends who support actually Delhi में so many people are no supported Kejriwal for the Delhi election. ये बात अरविंद ने अपने घर पे बैठे ब्रेकफास्ट के दौरान हमारे साथ कही, गाड़ी में चलते हुए हमारे साथ कही कि मोदी के खिलाफ बात अगर करूं तो हमारे ही बहुत सारे समर्थक हमारे खिलाफ हो जाते हैं। So I think we will end here. Thank you because this is a very interesting topic. We can go on for a long time. But I am very happy कि आप लोग आए और बातचीत हुई. Everybody has a different perspective. You have a lot of experience, and so we will get some response from our viewers और फिर बातचीत करते हैं. ठीक है? धन्यवाद.